Hello students, Happy New Year. I am Anusha Srivastav and you are watching Anuraja Nursing Classes. So today we are going to start our new year with a new topic, method of study of microorganisms. So, what are microorganisms? So, microorganisms are those living organisms which are microscopic in nature and they are not seen in naked eye, right? So, there are basically five methods of characterizing or study of microorganism. For example, the first step is inoculation. Second is incubation, third is isolation, fourth is inspection, and fifth is identification. In inoculation, we will study about culture media. Then we will start incubation, where growth of the microorganism, growth and colony will be studied. Then isolation, we will isolate the microorganism, and in inspection, we will inspect how the microorganism is looking, and in identification, we will identify or gives the name of the microorganism. So let's start our method with one by one. So first of all, it is inoculation. So inoculation or culture media, we can say that. So it is the first step for collecting the sample. After collecting the sample, in which microorganism or the sample are introduced in a container containing sterile medium to provide the microbes with appropriate nutrients to sustain growth. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे ले जाते हैं? एक स्टेराइल मीडियम बनाएंगे जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। ठीक है, वहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देते हैं जिससे हम ये सिक्योर कर सके, ये इंश्योर कर सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रो करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे। इसी को हम कल्चर मीडिया भी कहते हैं। जो हम स्टाइल मीडियम दे रहे हैं उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल मिक्सचर होता है वेरियस न्यूट्रिशंस का, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहां पे ग्रो कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, क्योंकि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, देर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। सो उनके लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वी हैव multiple culture media or various types of culture media, in which we will discuss some of the culture media here. For example, liquid medium, solid media, simple or basal media, synthetic media, enriched media, selective media, differential media, and transport media. Only 8 media we are going to study here. There are so many other medias also and the subparts also. So first of all, we will study about liquid media. As you know, liquid with the name itself is saying there is something which is in liquid form, right? कुछ तरल पदार्थ यहाँ पे है. So liquid media provide fluidity in the मीडियम, मतलब एक तरल पदार्थ प्रोवाइड करेंगे एंड बैक्टीरिया को मूव करने देंगे फ्रीली। लिक्विड मीडिया में कौन कौन से कल्चर मीडिया आते हैं? तो पेप्टोन वाटर आता है, ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ फॉर salmonella enrichment, as we know that salmonella typhi is the causative agent of typhoid, right? So for typhoid also, what we will which culture media we will use? We will use liquid media, right? और बेसिकली सेलेनाइट एफ ब्रॉथ मीडिया। देन रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ भी हम यूज करते हैं। लिक्विड मीडिया के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बल्क कल्चर कल्चर फॉर एंटीजेंस एंड वैक्सीन्स। अगर हमें एंटीजन एंड वैक्सीन्स के लिए हमें यहाँ पे बल्क कल्चर मिल सकता है, प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बायोकेमिकल टेस्ट के लिए हम इनोकुलम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ है हमारा लिक्विड मीडिया का एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू आइसोलेट फ्रॉम मिक्स कल्चर। अगर कुछ हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मिक्स कल्चर बना दिया है, एक कल्चर मीडियम बना दिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वहाँ पे फिर थोड़ी डिफिकल्टी आती है जब हम आइसोलेशन स्टेप पे आते हैं। ठीक है, तो लिक्विड मीडिया में एक वन ऑफ द मीडिया है, एग्जाम्पल है कौन सा? पेप्टोन वाटर, जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का ऑब्टेन फ्रॉम लीन मीट एंड अदर प्रोटीन सोर्सेज लाइक सीजन, सोया फ्लोर एंड हार्ट मसल्स। तो हम पेप्टोन वाटर जो कल्चर मीडिया बनता किससे है? जो लीन मीट के वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे, और कुछ प्रोटीन्स जैसे कि सीजन, सोया फ्लोर एंड हार्ट मसल्स। ठीक है,
ये मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मॉइस्ट मीडिया का। सेकेंड इज सॉलिड मीडिया। ओके, हियर द कल्चर मीडिया इज इन सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हम मीडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पे ग्रो होगा, मैच्योर होगा और मल्टीप्लाई करेगा इनोकुलेशन साइट पे एंड वेरियस विजिबल कॉलोनीज। तो सॉलिड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसीए भी कहते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ब्लड अगार। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेमिनेटेड ब्लड को न्यूट्रिएंट अगार में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। हम कौन से बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, तो स्ट्रेप्टोकोका इज वन ऑफ द बैक्टीरिया and other bacteria are hemophilus and neisseria. As we know that gonorrhea किसकी वजह से होता है, neisseria gonorrhea की वजह से, जिसकी वजह से तो सॉलिड मीडिया में हम neisseria, streptococcus, hemophilus, इन्फ्लुएंजा, गोनोरिया एंड अदर इन्फेक्शन हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ब्लड अगर प्रोवाइड्स एन इंडिकेटर सिस्टम फॉर हिमोलिसिस, हिमोलिसिस का एक इंडिकेटर सिस्टम भी प्रोवाइड करता है कि वेदर दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी डू द hemolysis or in the human body or not, can be used in hemolysis for RBC। आरबीसी की hemolysis के लिए भी यूज किया जाता है ब्लड अगार को, और ये कल्टीवेट करेंगे हमारे दीज मच ऑफ बैक्टीरियाज। नेक्स्ट इज चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ब्लड है वो मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगार में इंट्रोड्यूस किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो रेड सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और हीमोग्लोबिन जो होगा वो रिलीज होगा, और जिसकी वजह से जो कलर आएगा न्यूट्रिएंट अगार का वो कैसा आ जाएगा, चॉकलेटी। ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन कलर आ जाएगा, जिसको हम कह देंगे चॉकलेट अगार। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगार 80 डिग्री सेल्सियस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, एचबी इंट्रोड्यूस होगा, निकलेगा, रिलीज होगा, और एचबी हीमोग्लोबिन की वजह से कलर कैसा आ जाएगा, चॉकलेटी ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा चॉकलेट अगार है इसका बेसिक एडवांटेज क्या है कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसकी यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन ब्लड अगार कैन ऑल्सो ग्रो इन चॉकलेट अगार। तो जो हमने ब्लड अगार में स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस एंड निसीरिया देखा था, वो यहाँ पे भी ग्रो अच्छे से करेगा। ठीक है, थर्ड हमारा मीडिया है, कल्चर मीडिया, कौन सा है, सिंपल और बेसल मीडिया। दिस मीडिया सपोर्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। अभी तक हमने देखा था कि जैसे कि हमारे ब्लड अगार है या फिर सॉलिड अगार है, वहां पे फास्टिडियस बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे थे, पर जो हमारा सिंपल और बेसल मीडिया है यहाँ पे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, सिंपल मीडिया में पेप्टोन वाटर भी आता है, न्यूट्रिएंट बोथ भी आता है, दोनों की स्टडी हम कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगार की भी। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कौन कौन से होंगे, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होंगे। जैसे कि फर्स्ट है मीट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, जहाँ पे हम लीन मीट को पेप्टोन वाटर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड है मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ, जहाँ पे हम कॉमर्शियल पेप्टोन वाटर और मीट के एक्सट्रैक्ट को टुगेदर हम मिक्स करेंगे और कल्चर मीडिया बनाएंगे। थर्ड है डाइजेस्ट ब्रॉथ, जिसमें वाटरी एक्सट्रैक्ट होगा लीन मीट का, जिसमें हम कौन से एंजाइम्स डालेंगे, डाइजेस्टेड विथ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम्स डालेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार। फोर्थ हमारा सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया में यहाँ पे हम प्योरली कौन सा कल्चर मीडिया किससे बनाएंगे, प्योरली केमिकल्स से बनाएंगे, और यहाँ पे स्पेशल स्टडीज की जाएगी, जैसे कि हमारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ड्यूबो मीडिया विथ टी ट्विन 80। एग्जाम्पल क्या है, ड्यूबो मीडिया विथ ट्विन 80। तो सिंथेटिक मीडिया प्योरली केमिकल मीडिया होता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया मतलब यहाँ पे ग्रोइंग न्यूट्रिशनली फास्टिडियस बैक्टीरिया ग्रो करेंगे,
बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंसेस डाल सकते हैं हम मीडिया में? ब्लड डाल सकते हैं, सीरम, एग टू अ बेसल मीडिया में हम ये डालेंगे तो उसको हम एनरिच्ड मीडिया कहते हैं। एनरिच हम इसलिए करें ताकि फास्टिडियस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है। एनरिच मीडिया के एग्जांपल्स हैं जैसे कि ब्लड एगार मीडियम, जहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट कर सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। चॉकलेट अगार मीडियम हमने ऑलरेडी देखा था, निसीरिया एंड हिमोफिलस। बॉर्डेड गेंगो, जहाँ पे बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, राइट, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। एंड लोफ्लस सीरम स्लोप, जहाँ पे हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियो को आइसोलेट कर सकते हैं। तो प्लीज learn about the in media, in what media what we are going to isolate or what we are going to study about the microorganism, that we must know, and it comes in MCQs, right? So next is हमारा selective media. Selective media, these media inhibit the unwanted commensals or contaminating bacteria by addition of substance into the solid medium. सेलेक्टिव मीडिया में क्या होता है कि जो अनवांटेड चीज़ें होती है या जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए, जैसे मल्टीपल बैक्टीरिया एक जगह पे ग्रो कर रहे हैं और हमें बाकी बैक्टीरिया नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए उसको हम निकाल के कहाँ डाल देते हैं? सॉलिड मीडिया में। ठीक है। तो जो हमारा सेलेक्टिव कल्चर मीडिया हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, वो हमें दिखेगा कि ये जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये अनवांटेड है, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं सॉलिड मीडिया में, एंड द रेस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया में हमारे जो रेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहेंगे, जिनको हम सेलेक्टिवली चाहते हैं कि उनको ग्रो कराना। ठीक है। तो सेलेक्टिव मीडिया में बहुत सारे सेलेक्टिव मीडिया हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है मैककॉन्की अगार, आपने बहुत नाम सुना होगा। किसके लिए यूज किया जाता है? इकोलाई और एंटेरोबैक्टीरियेसी। ठीक है। डीऑक्सी डीऑक्सी चॉकलेट अगार, सॉरी डीऑक्सीकोलेट अगार, सिट्रेट अगार, साल्मोनेला एंड सिजेला हमने ऑलरेडी सॉलिड मीडियम में देखा था। देन विल्सन ब्लेयर मीडियम साल्मोनेला के लिए। लॉस्टीन जेंसन मीडियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। थार मार्टिन अगार कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स नसीरिया गोनोरे के लिए। मैनेटोन सॉल्ट अगर और सॉल्ट मिल्क अगर स्टेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। क्रिस्टल वॉलेट अगर ब्लड अगर स्टेप्टोकोकस पायोजनीस के लिए। एंड टीसीबीएस अगर जिसका पीएच 8.5 टू 8.6 रहेगा, विब्रियो कॉलरे फ्रॉम फीकल सैंपल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग कि ये जो हमारे कल्चर मीडिया है डिफरेंट डिफरेंट नेम के, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, ये इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में आता है, सो मेक श्योर कि आपको ये याद रहना चाहिए। Okay, so next is differential media or indicator media, right? Differential media or indicator media, these media have an indicator which changes color or bacterial growth. डिफरेंशियल मीडिया या फिर जिसको हम इंडिकेटर मीडिया भी कहते हैं, ये ऐसे मीडिया होते हैं जो कि जब बैक्टीरिया ग्रो होता है तो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैककॉन्की मीडियम, इसमें क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंट, जैसे मैककॉन्की मीडियम में क्या होगा, जब इकोलाई ग्रो करता है तो जो लैक्टोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और जब हम लिटमस पेपर फिर रखेंगे तो वो ब्लू पेपर रेड में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देन क्रिस्टेंसन मीडियम जो कि प्रोटीएस एंड क्लबसेला के लिए यूज किया जाता है, ये क्या करेगा, यूरिया एंड फिनॉल रेड देगा। दैट्स वाई हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। Next or last transport media, these culture media that are used to transport the sample from one area to another for preservation purpose. ठीक है। अभी तक हमने जितने भी मीडिया कल्चर मीडिया देखे थे वो ग्रो करने के लिए थे, उनका बेसिक फोकस था ग्रो करना या आइडेंटिफाई करना बैक्टीरिया की ग्रोथ को। पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो कल्चर मीडिया यूज किया जाएगा उसको हम ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि जब जब भी हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर या मॉइस्चर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो लैक हो जाए, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इस वजह से फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सी है, स्टूअर्ड ट्रांसपोर्ट मीडियम। सेकेंड है
वेंकटरमन रामाकृष्णन वीआर मीडियम, जो विब्रियो कॉलरे के लिए यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्लेरी ब्लेयर मीडियम, जो कि साल्मोनेला सिजेलियन विब्रियो कॉलरे के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमएस ट्रांसपोर्ट मीडियम भी हम यूज करते हैं फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन। सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि इनोकुलेशन था, बेसिकली कल्चर मीडिया था, वो यहाँ पे खत्म होता है। देन हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है, विच इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब इंक्यूबेटर या इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर या फिर सेल कल्चर को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ऑप्टिमल टेम्परेचर देंगे, ह्यूमिडिटी देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट देंगे, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने रेडी किया है कल्चर मीडियम में, वो प्रॉपर ग्रो करे और उसका कल्चर अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है। थर्ड स्टेप इज आइसोलेशन। आइसोलेशन में हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स को जो पेट्री डिश या फिर क्या कहते हैं कल्चर मीडिया में हमने रखा था, उसको हम सरफेस पेट्री डिश की सरफेस पे रखेंगे और उनको आइसोलेट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 5 मेथड है आइसोलेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फर्स्ट है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सेकेंड स्पोर प्लेट टेक्निक, थर्ड इज स्प्रेड प्लेट टेक्निक, फोर्थ इज सीरियल डायल्यूशन मेथड एंड फिफ्थ इज द सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ द मिक्स कल्चर कहाँ पे प्लेस होगा, on the surface of medium containing agar, and it is streaked across the surface using a transfer loop। एक ट्रांसफर लूप लेंगे और उसको स्ट्रीक कर देंगे, चलाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया हो जाएगा वो थिन हो जाएगा, और इससे जब बैक्टीरिया थिन होने लगेगा तो धीरे धीरे हमें इंडिविजुअल बैक्टीरिया दिखने लगेंगे, हम उनको पिकअप करके सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड इज पोर प्लेट टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम डाइल्यूटेड सैंपल्स को मिक्स करते हैं विथ मेल्टेड अगार एक प्लेट में। ठीक है। देन हम मिक्स बैक्टीरिया कल्चर को डाइल्यूट करेंगे इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग मेल्टेड अगार, मेंटेन एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। हर ट्यूब में द हर ट्यूब के कंटेंट को हम सेपरेट पेट्री डिश में रखेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है। अब जब उसमें बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तब हम उनको सेपरेट करेंगे धीरे धीरे, और वो खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कॉलोनीज हमें फॉर्म मिलेंगे अगार मीडियम में, और जो सेपरेट कॉलोनीज हमें फॉर्म मिलेंगे हम उनको पिकअप कर लेंगे विथ इनोकुलेशन लूप, एंड फिर हम उनको पेट्री डिश में स्ट्रीक करेंगे, मतलब चलाएंगे, हिलाएंगे, तो इंडिविजुअल बैक्टीरिया थिन आउट हो जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है, मिक्स कल्चर आर डाइल्यूटेड इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्टेराइल लिक्विड। यहाँ पे भी पोर प्लेट मेथड की तरह हम टेस्ट ट्यूब रखेंगे, लेकिन टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे कोई भी मिक्स कल्चर नहीं डाला है, हमने यहाँ पे मतलब मेल्टेड अगार नहीं डाला है, मिक्स कल्चर सीरियल लिक्विड में सॉरी स्टेराइल लिक्विड में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और हर अ ड्रॉप ऑफ ईच डाइल्यूटेड लिक्विड फ्रॉम ईच ट्यूब इज प्लेस्ड on the center of agar plate and spread uniformly on the surface using a bent glass rod। क्या सॉरी क्या करेंगे हम, तीन ऐसा हमने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, स्टेराइल लिक्विड डाला और मिक्स कल्चर डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अगार प्लेट लेंगे, तीन, अगर हम 3 टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 हम अगार प्लेट लेंगे, और हर टेस्ट ट्यूब से एक एक ड्रॉप हम उन अगार प्लेट में डालेंगे। ठीक है। अगार प्लेट में डालने के बाद अब हम उसको एक बेंट ग्लास रॉड से उसी डाइल्यूटेड ड्रॉप को हम पूरे अगार प्लेट में स्प्रेड करेंगे। अब जब हम स्प्रेड करेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट होने के लिए। जैसे ही इंक्यूबेट होगा तो बैक्टीरिया कॉलोनी जो होगी वो डेवलप होने लगेगी, और जो बैक्टीरिया कॉलोनी डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे वो स्प्रेड अपने आप हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। सेपरेट होने के बाद फिर हम उनको पिकअप करेंगे और दूसरे ट्रांसफर कर देंगे दूसरी मीडिया में, जो कि प्योरली पर्टिकुलर उसी बैक्टीरिया का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक प्योर कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमें ऑब्टेन करना होता है, ग्रोज इन लिक्विड मीडियम, एंड फिर हम उसको कल्टीवेट करेंगे सोडियम मीडियम में या सॉलिड मीडियम में। ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन क्या करता है कि एक सीरीज ऑफ ट्यूब्स लेगा जिसमें हम
हर बार डाइल्यूट करेंगे सम ट्यूब्स सो दैट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें शो कर सके। ठीक है। सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में एक इंडिविजुअल डिजायर्ड सेल को पिक करना होता है फ्रॉम द मिक्स कल्चर और उसको ग्रो करने के लिए अलाउ कर देते हैं। इसमें दो मेथड्स होते हैं, कैपिलरी पिपेट मेथड एंड माइक्रो मैनिपुलेटेड मेथड। कैपिलरी पिपेट मेथड में क्या होगा कि एक स्मॉल ड्रॉप्स होती है डाइल्यूट कल्चर मीडियम की, जिसको हम स्टाइल ग्लास कवर स्लिप पे इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लेस करते हैं और उसको फिर कैपिलरी से कैपिलरी इंट्रोड्यूस करना, कैपिलरी पे वो आता जाता है। ईच ड्रॉप इज देन माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे। यूजुअली अ ड्रॉप कंटेनिंग ओनली वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। दिस ड्रॉप इज पिक्ड अप यूजिंग अ पिपेट एंड एडेड टू अ fresh medium where the individual microorganisms start multiplying to yield a pure culture। ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, एक कल्चर मीडिया से स्मॉल डाइल्यूटेड ड्रॉप पिपेट के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू, ट्रायल पिपेट के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू हमने सेपरेट आउट कर लिया और अलग से एक फ्रेश प्योर कल्चर में डाल दिया है। अब वो वहां पे इंक्यूबेट एंड ग्रो करेगा। ठीक है। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड में क्या होता है, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल को पिक करते हैं फ्रॉम अ मिक्स कल्चर बाय यूजिंग द डिवाइस मैनिपुलेटेड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है कि मैनिपुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ऑफर करेगा एडवांटेज ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द माइक्रोपिपेट और अ माइक्रोप्रोब और इट्स ऑपरेटर फॉर आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल सेल। द यूज ऑफ अ माइक्रोस्कोप shows the point where the microprobe touches the agar gel close to a bacterial cell। बेसिकली क्या करते हैं, हम एक स्लाइड बनाते हैं जिसमें कल्चर मीडियम होता है। ठीक है। स्लाइड बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखेंगे, फिर हमें जो बैक्टीरिया जो कॉलोनी सेपरेट आउट करनी होती है, हम वहां पे माइक्रो मैनिपुलेटर के प्रोब के थ्रू हम वहां पे उसको सेपरेट आउट करते हैं, कट आउट करते हैं, और जब कट आउट हो जाता है तो वहां से फिर वो पर्टिकुलर सेपरेट कर लेंगे वो बैक्टीरिया को और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक प्योर कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है। देन हमारा जो स्टेप है वो इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या होता है, स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे कल्चर्स की एंड माइक्रो स्कोप में व्यू करेंगे उसकी ग्रोथ, साइज एंड शेप, वेदर इट इज ग्रोइंग, व्हाट इज इट्स साइज, व्हाट इज द शेप, ये सब करेंगे, देखेंगे। एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इट इज, व्हाट इज द कॉलोनी अपीयरेंस, how bacteria look, what is its morphology, how it's happens its biochemical reaction, और ये कितना पैथोजेनिक है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। So this is all about our method of study of microorganism. I hope you guys liked our video and I hope